this. It seems your brother was involved in a lot more activities than just smuggling guns for you. So what is this? Drugs, prostitution, extortion? I heard rumors of this project in Indochina years ago, and I can't believe it. Seems they actually had the resources to pull it off. I'm most impressed. Well, what does it say here? An augmented, amplified, and improved version of the human species. Why won't anyone clone a little fool like my brother? Where did this take place? In some remote location in Romania. Doesn't say exactly, but I know how to find it. If you're interested. Пиздец. The place is a mess. What the hell happened here? Well, you should have a look at these surveillance tapes. I think they explain the carnage. I had a feeling we might find something like this. I was hoping. Clover. This guy is damn fantastic. Maybe not as strong as me, but fast. You know who he is? And so do you. This, my friend, is Mr. 47. Нифига. 47 is nothing but a rumor. No one has ever proved that he exists. You know, I actually saw him once in Rotterdam. Didn't know that was him at the time, though, but I did some research. So you already knew he had been here? Sort of. But is he for hire? Used to be, but I've heard no reports on his activities for a very long time. So, for all I know, he could be dead. Dead? Ты что, совсем сдурел? This tape proves that he's still alive. Now you just have to make him work for us. Well, let's go find him then. A killer like that never retires. हेलो लॉन्ग टाइम नो सी। आज हम खेलने वाले हैं हिटमैन 2 द साइलेंट असैसिन, मेरे बचपन का वन ऑफ द फेवरेट गेम। सो हमने इस गेम में आज प्रोलॉग खेला है और साथ ही साथ इसकी फर्स्ट लेवल कंप्लीट की है। सो स्टोरी शुरू होती है सिसली से। मैं थोड़ा सा पुराने गेम के बारे में बता देता हूँ। ये एक क्लोन रहता है, अपने डीएनए वाले जो फादर्स रहते हैं जिससे बना हुआ है उन्हें मारता है। सो बहुत कुछ चलता है स्टोरी में। सो यहाँ ये उसके बाद जो अपनी रिटायरमेंट ले लेता है अपनी असैसिन वाली जॉब से और चर्च में काम करता है एंड ये कन्फेस करना चाहता है कि मैंने बहुत सारे खून किए हैं। सो ऐसा ही ये सब सीन चलता है पूरे इस कट सीन में। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ वन ऑफ माय फेवरेट गेम। So finally we are here in our shed. So start करते हैं गेम को। Buongiorno, figlio mio. Come va? Padre, I'm okay, but I must speak with you. Taci, figlio mio. Be quiet, my son. We have a segno here in Sicily. Non saccio, non vede, non c'ero, e se c'era dormia. So, if you want to open your hearts, the only safe place is a confession church. Meet me there noon. So इसने बोला कि तुम्हें कुछ भी कन्फेस करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम चर्च में जाके कन्फेस कर लो। सो ये तो बहुत धीरे धीरे जाता है। मैंने इस गेम को बहुत बार खेला है, मतलब बहुत बार कंप्लीट किया है, तो मुझे याद है। वैसे तो बहुत टाइम पहले किया था।
तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही कंट्रोल वापस से रीचेक कर लेता हूँ, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे सुअर भी रहते हैं जिन्हें मैं बहुत मारा करता था जब मैंने आखिरी बार इन्हें खेला था गेम को। तो फर्स्ट पर्सन व्यू में जाके देखता हूँ मैं, देन इसके पीछे जाता हूँ, फिर भी ये बहुत धीरे धीरे चलता है। अगर मैं नॉर्मली भी चलूँ ना बिना शिफ्ट दबाए तो भी ऐसे ही चलेगा, मैं इससे आगे निकल सकता। Padre, I have sinned. Avanti, figlio mio. Continue, my son. I have done some terrible things in my life. I have killed many people for money, out of ignorance, out of evil, out of hatred. Figlio mio, I know you well. You are also a good person. I've seen you taking care of the garden. I know of the large amount of money you donate to the church. Your soul is on the right path. But Father, I do not belong. I'm not of this world. So why should God forgive me? Do not worry, my son. When your time comes, He will have a place for you as well. Just keep God in your heart. Now I must leave. Stay a while and pray. Lead me, O Heavenly Father, in the path of right. I walk alone and stumble in the dark. Show me the light and I'll go there. Let me find peace in my own heart and save me from my enemies. Benvenuti ragazzi. Purtroppo la chiesa è chiusa. Venite domani, per favore. Benvenuto, vecchio amico mio. Non è questo il momento di darci Per favore, appuntamento! aiutatemi! Lasciatemi per favore! Lasciatemi! Lasciatemi! Porca troia! Taci! Stai giù! Giù! कुछ लोग हमारे दोस्त को उठा के ले गए हैं और कुछ पार्सल छोड़ के गए। हमारे दोस्त क्या, हमारे फादर को उठा के ले गए। हम इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर हमें एक लेटर मिलेगा, जहाँ तक मुझे याद है। Benvenuto in Sicilia, Bassano. We hope you enjoyed the famous Italian hospitality on our beautiful island. However, there will be a slight charge for your stay. You will prepare a cash transfer of $500,000. No later than midnight the day after tomorrow. Meanwhile, we'll be entertaining your host, Padre Vittorio. He very much enjoys fishing. We are making sure he is happy that way until payment has been effected. Lei sentirà di noi, Giuseppe Giuliano. $500,000. Can't pay that. I'm going to the garden shed. Time to dig up the past. Yes, time to dig up the past. हम जा रहे हैं अपनी एजेंसी को कांटेक्ट करने, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में। Agency, this is 47. Patch me through to Diana. We need to confirm your ID registration, please. My number is BRO 3886. Put Diana on. She'll recognize my voice. 47? This is Diana speaking. It's good to hear your voice again. We all thought you were dead. You'll be pleased to know your skills are in great demand these days. You're almost a legend amongst our customers. Diana, I'm not looking for work. I need some information on a Giuseppe Giuliano from Palermo, Sicily. What have you got? Let me see. Giuseppe. Oh yes, I've got a fat file. Giuseppe Giuliano, aka Don Aguilo Giuliano. Capo of one of the largest, oldest and most influential mafia organizations in Sicily. I need detailed satellite surveillance on his residence and info on security and access routes. And keep an eye out for a priest. He's a friend of mine and was kidnapped. A friend? Have you gone soft, 47? Besides, we don't believe in handing over information for free. How do you think you're going to pay us back?
I've heard that you're extremely wealthy. Yes, I know. I've heard that rumor too. It's not true though, but I'm sure you can suggest an arrangement. I'll pull a few strings and see what I can do. Actually, I do have a special request for you to perform a contract assignment. It should be a simple operation. A mission? Exactly. If you accept, I might be able to give you the requested information very soon. What do you say, 47? Still sharp enough to handle a job these days? सो हमने एंट्री ले ली है अपने पुराने गेटअप में। तो मैं थोड़े से वेपन्स लेने जा रहा हूँ जो कि मुझे एक शेड में मिलेंगे, जो कि मेरा वेपन रखने की जगह है। वहाँ पे मैं सारे वेपन वहीं रखता हूँ। सो क्या डायलॉग्स है यार गेम के, मज़ा आ गया सुन के ऑफिस से। This is Diana from agency. We're all happy you're back doing business for us. This mutual arrangement we made to rescue your friend and mentor, Father Vittorio, means you will have to take care of a number of mafia members residing at the Villa Borghese, where he is kept hostage in the basement. Prime target is Don Giuliani. Security is not exactly lax. Plenty of guards roaming the mansion compound. However, don't expect to free Vittorio just like that. The Don is running a tight ship, and if alarmed, he will probably kill the hostage and escape. They're used to people coming to pay respect, ransoms or bribes, but they are alerted by unusual activities. Check out the map we have of the grounds. Buena fortuna, 47. सो अपना मिशन स्टार्ट हो जाता है, यानी फर्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाती है, जिससे भी जुलियानो को हमें मारना है, जो कि अपने फादर को लेके भाग गया था चर्च वाले। सो फर्स्ट लेवल तो ऐसा है कि मैंने बहुत बार खेली है और एक्चुअली मेरे को रटी सी हुई है, ये ऑलमोस्ट पूरी ही रटी हुई है। कहीं पे छोटी मोटी गड़बड़ हो सकती है, बाकी तो आखिरी में तो 100% स्टिलनेस से ही मैंने उसे पास कर दिया था। सो ये चीज़ तो मुझे रटा गई है। वैसे तो ये गेम इतना यूनिक है कि इसको पार करने के और इस घर में एंटर करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि वो जो फ्लावर वाला बंदा आ रहा था, उसको मार के अपन उसकी ड्रेस लेके भी स्केप क्या उसको मार सकते थे अंदर जाके, पर मुझे ये तरीका सबसे अच्छा लगता है। इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि जब अपन वो फ्लावर वाला बंदा बनते हैं तो अपने को सारे वेपन्स अपने बाहर छोड़ के जाने पड़ते हैं। तो वो तरीका मुझे ज़्यादा याद भी नहीं, क्योंकि उस तरीके के लिए अपने को घर के अंदर घूमना पड़ता है और घर बहुत टिपिकल है। सो मैं तो ये लेवल बार बार से क्लियर कर दूँगा। सो हम क्लोथ चेंज करते हैं, इसको मारते हैं, देन इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ले जाते हैं ताकि बोर्ड इसकी बॉडी को नहीं देख पाए, गाड़ी इसकी बॉडी को। सो गेम हमें थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस देता है कि अगर तुम इस गेम को स्टिलनेस से पास करना चाहते हो तो गार्ड के सामने बेवकूफ़ जैसी हरकत मत करना, फालतू में इधर उधर पागलों के जैसे भागने मत लगना। सो आराम से इस लेवल को बिना उनकी नज़र में आए पास करना, और अगर ज़्यादा पास जाओगे गार्ड के तो भी वो तुम्हें पहचान सकते हैं। जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये बंदा मेरी तरफ बार बार देख रहा है, एंड तुम मेरी हेल्थ के नीचे वो बार देख सकते हो जो बार बार बढ़ रहा है, कम हो रहा है। सो जब रेड हो जाता है वो भी फुल लेंथ पे, तो इसका मतलब ये है कि लगभग तुम पकड़े ही गए हो, तुम्हें पहचान लिया गया है और तुम्हारे पास वार्निंग भी आ जाती है। सो जैसा कि मैंने बताया था, मैं बार बार से इसको पार करूँगा, घर के अंदर जाऊँगा ही नहीं, बस बॉस को मारने जाना है, उसके बाद तो काम कंप्लीट हो जाएगा अपना। यहाँ पे दो बंदे रहते हैं, स्पेशल टाइप के गार्ड्स रहते हैं, एक टाइप से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है ना बॉस का, उस टाइप से। सो उनके पास रहती है डेजर्ट ईगल।
तो कुल मिला के रहता है यहाँ पे कि वो वॉशरूम करने जाते हैं उधर झाड़ियों में, और हमको भी यहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ना होता है। तो मेरे को लगा वो लिख लेंगे, फिर मैंने मैप खोल के देखा तो वो ऑलरेडी मूव रहते हैं वहाँ पे जाके। तो मेरे को लगा मैं लेट हो गया, मैं पकड़ा जाऊँगा जब सीढ़ियाँ चढ़ूँगा। तो मैं फटाफट से ऊपर चढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि देख ना ले मुझे, वरना मैं तो गया, वीडियो फ्लॉप। इतना पूरा ना गेम भी पार नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं फटाफट जाता हूँ और यहाँ पे जाके कोई चिल्ला देता है, तो मेरी आ जाती है फट के हाथ में कि क्या हुआ भाई क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मुझे लगा था मुझे किसी गार्ड ने देख लिया है और फिर वापस से मतलब वो अलर्ट कर देगा सबको और बॉस के पास भी सिक्योरिटी पहुँच जाएगी। पर अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, पता नहीं कौन किसको देख के चिल्लाया, वो मैं डर गया इधर। सो मैं इसी डर के मारे ऐसे ऐसे चल रहा था और मैंने मैप खोल के देखा कि कोई गार्ड एग्रेसिव तो नहीं हो गया है, मतलब एग्रेसिव होते हैं वो तो भागते हैं इधर उधर। सो मैं यहाँ पे छुपता हूँ, देन मैं गेम सेव कर लेता हूँ यहाँ पे कि अब किसी ने देख लिया, क्योंकि इस गैलरी में से देख सकते हैं वो अपने को। सो मैं यहाँ पे गेम सेव करूँगा। तो अब मैं धीरे धीरे बैठ के उधर जाने की कोशिश करता हूँ और मुझे दिखता है कि 2 गार्ड यहीं खड़े हैं, एक स्पेशल वाला और एक नॉर्मल गार्ड जो है। तो मैं उनका वेट करता हूँ जाने का। एक गार्ड तो जाने लगता है पर ये वाला जा नहीं रहा होता है। तो मेरे को लग रहा था कि ये अलर्ट तो नहीं हो गया इसलिए यहाँ पे खड़ा हो, पर थोड़ी टाइम वेट करने के बाद ये खुद ही चला जाएगा। देन मैं थोड़ी देर तक यहाँ पे वेट करता हूँ और मैप में देखता हूँ कि बॉस आ रहा है। जो रेड वाला है वो बॉस है और जो ये येलो और ब्लू वाले जो आते हैं वो रहते हैं गार्ड। तो इसमें तो येलो वाले ऑरेंज वाले हैं, तो ये गार्ड है और रेड वाला हमेशा बॉस रहता है। सो मुझे इस बॉस को भी धीरे से मारना होगा, आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो मैं फाइबर वायर निकालता हूँ, देन धीरे धीरे इसकी तरफ जाता हूँ। फिर मुझे पता चलता है मैं बैठा हुआ हूँ, मैं झुक के, मतलब जो धीरे से चलते हैं जिससे आवाज़ नहीं आती उस टाइप से नहीं चल रहा हूँ। तो मुझे लगा मैं पकड़ा जाऊँगा। देन सडनली एक इसकी जो मैड है वो आ जाती है। सो मेरे को लगा गया भाई मैं तो। देन वो चली भी जाती है, उसको लगा मैं गार्ड था, अच्छा हुआ मैंने फाइबर वायर अंदर रख लिया था। देन मैं धीरे धीरे इसके पीछे जाता हूँ और पता नहीं क्यों ये पकड़ नहीं रहा था, पागलों जैसी हरकत कर रहा था, शायद मैं बहुत दूर खड़ा था। तो मैं फिर पास जाता हूँ। अब फाइनली जाके इसको ख़त्म करता हूँ। इसमें एक टेक्निक होती है, अगर मैप खोल के वापस सडनली बंद कर देते हैं तो वो जो एनिमेशन होता है इसे मारने का वो अपने आप ही स्किप हो जाता है। तो मैं फटाफट रिवॉल्वर ले लेता हूँ क्योंकि गन बढ़नी है, मतलब बढ़ानी है अपने को, गन बढ़िया अपने। और जो अपने बेसमेंट की है वो ले लेता हूँ जहाँ पे इसने अपने फादर जो रहते हैं अपने उनको कैद करके रख रखा है। तो मैं फटाफट यहाँ पे देखता हूँ गार्ड वार्ड तो नहीं है, देन फटाफट भाग के जाता हूँ। और यहाँ पे एक टेक्निक है, वैसे तो हम नीचे उतर के भी जा सकते हैं, पर यहाँ पे एक टेक्निक है कि हम यहाँ से इस दीवार के ऊपर चढ़ के नीचे कूद सकते हैं। मैंने कहा था ना मुझे लेवल बहुत अच्छी तरीके से रटी सी हुई है एक टाइप से। तो मैं फटाफट एंगल बिठाता हूँ एंड कूदता हूँ एंड भाग के जाता हूँ और बेसमेंट खोलता हूँ। Diana, he's not in the basement. They must have moved him. 47, this is Diana from agency. You're probably right. Recent satellite footage suggests a priest being dragged along by 4 bearded Russian-looking types in uniform. सो गार्ड्स भी इसी बीच अपने बॉस की बॉडी मरी हुई देख लेते हैं। सो वो भी अलर्ट हो जाते हैं, वार्निंग लिखी हुई आ जाती है, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है। सो हम जा सकते हैं उधर से भी, जो वो दरवाज़ा दिख रहा है बड़ा सा वॉल टाइप, एंड हम पहाड़ से भी निकल सकते हैं। तो पहाड़ वाले में थोड़ा सा अच्छा सा एनिमेशन आता है, इसलिए मैं यहाँ पे पहाड़ पे आ जाता हूँ, पर मुझे एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता कि भागना कहाँ से। फिर मैं थोड़ा बहुत घूमता हूँ एंड फाइनली लेवल हो जाती है पार। सो अभी यहाँ पे बोर्ड आएगा अपना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर अपन लेवल को साइलेंटली पार करते हैं ना, सो हमें नए नए वेपन्स अनलॉक हो जाते हैं। जैसे अगर मैं इसी लेवल को अगर खून खराबे से पार करता, एग्रेशन से पार करता, तो मुझे गन नहीं मिलती जो जो बॉलर्स मिली है ना मुझे। पर अगर मैंने इसे साइलेंटली पार किया तो मुझे बॉलर्स भी मिल जाएगी। सो डेट इज़ इट फॉर टुडे गाइस।
Hope you enjoy and thanks for watching. Like, share and subscribe. Bye bye.